morning everyone. Today I'm going to discuss about the sports psychology. Sports psychology is important topic in class 11th curriculum, as well as this topic is in class 12th also. And people those who are associated with sports field, or those who are associated with physical activities, for them this is a very interesting topic, as well as this topic helps them to enhance their performance in their field. Even that will enhance the efficiency of their working quality, as well as they can more efficiently interact with their students, with the clients, or with the uh, other individuals, those who are working with these physical education or sports professionals. So before starting the content, I would like to say, please share, like and subscribe the channel, and watch the full video. Now I'm going to start the content. In the physical education field, sports psychology is a very interesting topic, because this is the science of behavior. This is the science of human activities, where we are going to understand the behavior of an individual, or of a human being, how he is going to react in any condition, which is either adverse condition or diverse condition. In both conditions, how he is going to behave with the fellow teammates, or with the opponent, or even sometime people those who are unable to control their behavior, people those who have a very unstable mental equilibrium. They will be led by stress, anxiety, or depression, and that causes their low performance, and sometimes loss of the match also. So this is a very important topic. See, nowadays every team is using almost same teaching methods, same coaching methods, same scientific coaching methodology. Even they are using same equipments, and now at national level or international level, now teams are doing proper skill drills and tactics and strategy they are making for the opponents at the same level. Now the main difference between the teams, or with the between the players, are their mindset, their body language, their mental toughness and decision making quality. A person who's more mentally fit, a person who's a strong decision maker, and a person or a player who can follow his decision to the last or the end of the match, definitely he will survive in that match and he will win. So this is a field where we are going to learn how to make a positive attitude, how to behave in a match, and how we are going to set our mindset for the coming condition. हम लोग बहुत एक currently अभी बात है when Mr. Mahendra Singh Dhoni taken retirement from the all formats of the cricket. Now he is going to play only domestic matches and club matches. Even IPL is also club match only. So now he is not going to play for BCCI. See, he is famous for his decisions only, and he is Mr. Captain Cool, or Mr. Perfect. इसलिए उनको बोला जाता है, because his mental setup, his mental equilibrium was very strong. His decisions was very clear, and very sometimes these decisions were very strange for others, but his concept was clear for his decision, and
always he was in habit of winning the matches. So this is important of mental fitness or psychological well-being. So now I'm going to start the content. Here we are going to discuss about sports psychology. Before discussing about the sports psychology, हमें ये समझना होगा what is psychology. When we are talking about psychology, psychology is generally psychology is derived from a Greek word psyche plus logos. Psyche means soul, and logos means scientific study. Means the scientific study of the soul is called psychology. As we know that human soul is still abstract topic, we cannot see, we cannot define the soul. So it was very difficult to learn or to define for the scientifics or for the psychologist as a topic or as a content. So later on this soul word was changed, and then it became the study of human consciousness or human mind is called psychology. Then again the brain mapping or the mind mapping, or we can say the study of mind, is also somewhere it is about the abstract topic. We cannot define even mind also. So later on again by a change, it became the study of human behavior is called human psychology. So the study of human, the scientific study of human behavior is called psychology. According to some scientists or some psychologists, some definitions are there. Like मैं एक definition अभी narrate करता हूँ. Like psychology is the positive science of human behavior, according to Watson. Means a science by which we can come to know about the behavior of an individual or a human being, that is called psychology. Now next topic is sports psychology. What is sports psychology? In a very simple word, we can say a science or a study of sports person's behavior is called sports psychology. See, behavior before the match, during match, and after match, that includes, and including all these behaviors, we can say a perfect sports person's behavior. Means जब कोई भी जो एथलीट है उसका प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रैक्टिस किस तरह का बिहेवियर होता है, देन बिफोर मैच how he is going to react, what is his anxiety level, what is his aggression level. Sometimes if that player is skilled, he have proper mental fitness, उसके अंदर किसी तरह की एंजाइटी नहीं होगी, किसी तरह का ओवर एग्रेशन नहीं होगा या स्ट्रेस में नहीं होगा. बट व्हेन द प्लेयर इज़ नॉट रेडी फॉर द मैच, समटाइम्स इवन जिस तरह से एक नॉर्मल लोगों को एग्जामिनेशन फीवर होता है, उसी तरह से जो प्लेयर्स उनको मैच फीवर होता है बिफोर मैच. जनरली उनको शिवरिंग होना और स्वेटिंग होना, इवन हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ये सब दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स. इन दैट कंडीशन, what is the behavior of the sports person? Then during match, while performance, generally जो players होते हैं उनका aggression level बहुत बढ़ जाता है. stress में तो होते ही हैं, no doubt, but ये जो stress है, जो aggression level है, कई बार sports performance के लिए बहुत अच्छा होता है if it is in a controlled manner. Without aggression, it is my own thinking, but as a player I can say this thing ki before without aggression no one can survive, no one can even perform properly. Without emotional feeling, without aggression, without taking a pressure, the player cannot perform properly. So aggression and anxiety
or stress condition will be there during match also. And then after match, when the player come to know that the result of the game, either his win or lost the match, in the both condition, what is the behavior, what is the reaction of that player, that is स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक और चीज़ आता है जो अभी आगे हम लोग बहुत प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉपिंग विद द टीममेट्स एंड कंडीशंस और स्ट्रेटजीज बिफोर मैच, ड्यूरिंग मैच एंड आफ्टर मैच. किस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. लाइक मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ. सपोज कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर है जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है अभी, एंड अभी अगर टीम की रिक्वायरमेंट है, कोई विकेट्स जल्दी गिर गए हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, उसको फर्स्ट और सेकंड डाउन में ऊपर आके बैट करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेयर कैन नॉट से कि नो आई कैन नॉट बैट देयर. दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ बेटर और अ ग्रेट प्लेयर दैट ही कैन गो एट एनी लेवल फॉर हिज टीम एंड परफॉर्म देयर. द सेम थिंग इज फॉर फुटबॉल. सपोज a midfielder is playing midfield और जो अटैकर है या जो स्ट्राइकर है वो बॉल के पीछे नहीं आ रहा है, उसको बॉल नहीं दे रहा, मतलब वो नहीं अपना जोन पूरा प्रॉपर खेल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन मिडफील्डर ही नहीं बोल सकता कि नहीं माई वर्क इज ओनली फीडिंग द बॉल. नो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, द डिमांड ऑफ द कंडीशन और डिमांड ऑफ द सर्कमस्टांस, कि हमने उस कंडीशन में जो एक नया चेंज आ रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स और ड्यू टू सम अदर कंडीशंस, हमें उसके साथ कॉप अप करना ही होगा. सेकंड थिंग, सपोज वी आर प्लेइंग विद एनी अदर टीममेट और हमारी टीममेट की जो क्वालिटी है, सपोज आई एम रनिंग इन रिले रेस एंड जो हमारा एथलीट है वो 80 मीटर तो बहुत अच्छा दौड़ रहा है, बट नेक्स्ट 20 मीटर्स में वो डाउन हो जाता है. एंड इफ आई हैव क्वालिटी, I can run 120 meters properly and efficiently. Definitely this is my responsibility to go after my 100 meter also and cover that 20 meters. It is a moral responsibility and ethical responsibility of the player. Now it is up to the sports psychology that which type of psychology that athlete have and how he is going to behave with the teammates also. This also depends upon the sports psychology. ओके, नाउ बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट टर्म इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन. विदाउट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विदाउट जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा जो ओपोनेंट, सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से बताया भी कि हम लोग ये जान सकते हैं कि मेरे टीममेट का क्या बिहेवियर होगा किसी भी कंडीशन में या किसी भी सर्कमस्टांस में. द सेम थिंग इज हमारे ओपोनेंट का कैसा बिहेवियर होगा किसी भी कंडीशन में. मीन्स एज अ बैट्समैन हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉलर है वो हमें बाउंसर मार सकता है. तो दिस इज जो सामने की जो प्लेयर है, जो ओपोनेंट है, उसके माइंड को रीड करना, दैट इज अप टू द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. अब अगर ये हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, सो वी कैन नॉट सर्वाइव इन द स्पोर्ट्स फील्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. द फर्स्ट importance is the development of psychological capacities. See, by mental toughness training और by decision making training, जब हम लोग कुछ ऐसे कंडीशंस देते हैं प्लेयर को ड्यूरिंग द मैचेस और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैचेस और विद द प्रैक्टिस सेशन, कि वो अपनी डिसीजंस को खुद ले, जो भी स्किल्स उसने सीखा हुआ है, हाउ इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द मैच ड्यूरिंग ऑड कंडीशन, हाउ इज़ गोइंग टू चेंज हिज स्ट्रेटजीज. जितनी ज़्यादा हम प्लेयर्स को इसकी ट्रेनिंग देंगे, जितनी उसकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा हम उसकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, या उसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ को, या उसकी जो खुद के ऊपर फेथ है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं. देन एडिंग द लर्निंग ऑफ द मोटर स्किल. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या किसी भी प्लेयर की जो मेंटालिटी है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको समझ करके
हम उसकी जो मोटर स्किल्स हैं, उसकी लर्निंग को की जो गियर है उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हिज एक्चुअल कंडीशन ऑफ द प्लेयर, जो भी हमारा टीममेट है या जो भी हमारा ट्रेनी है, या हम एज अ प्लेयर हम खुद चीज़ समझ सकते हैं कि जब हमें अपनी एक्चुअल मेंटल एफिशिएंसी का पता होता है, व्हेन definitely we can enhance our learning skills, our learning motor skills, then development of strategies and plans with the mental toughness, with the a perfect mental equilibrium. We can make some strategies or plans according to the need of the condition or circumstance. See, for example, suppose I'm a bowler. हमारा जो बैट्समैन है, जो ओपनिंग बैट्समैन है, ही इज़ वेरी परफेक्ट इन प्लेइंग कवर ड्राइव और इन प्लेइंग एनी शॉट। सपोज अगर उसने हमें एक ड्राइव मार दिया या एक शॉट मार दिया है, तो एज अ प्लेयर दिस इज वी कैन नॉट चेंज सडनली आर स्ट्रेटजीज कि मैं तुरंत अपनी बॉलिंग की जो लाइन है, लेंथ है, उसको चेंज कर दूं और कुछ नया सडनली ट्राई करना स्टार्ट कर दूं। सी हमारे पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए हर एक कंडीशन को लेकर के, हमारी एक अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड अगर उस स्ट्रेटजी में भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो हमारी मेंटल टफनेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी एट सेकेंड लेवल। ठीक है, मुझे मिस्टर ब्रायन लारा का एक स्टेटमेंट याद आता है कि कभी उन्होंने कहा हुआ था कि एक जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है वो सबसे ऑड कंडीशन में सबसे कॉमन या सबसे जनरल या सबसे सिंपल तरीके से खेलता है। मीन्स डिफ़िकल्ट कंडीशन में जो सबसे सिंपल कंडीशन गेम खेले, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। मीन्स आपके ऊपर वो जो एक डिफ़िकल्ट कंडीशन है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। योर मेंटल प्रेजेंस और योर मेंटल इक्विलिब्रियम इज़ वेरी सेट फॉर योर ओन जॉब। आपने हड़बड़ाहट में आकर के या कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है कि जिनसे आप अपनी जो एक सेट, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो किसी कोई भी स्किल है, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, जिम्नास्टिक्स कर रहे हो, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेस मिला करके या अपने आप को कुछ ऐसा करके हमने जो हमारी एक सेट कंडीशन है उसको हमें चेंज नहीं करनी है, बल्कि हमने जो हमारा एक बेस्ट एफर्ट है, जो हमारी बेस्ट क्वालिटी है, हमें उसको बहुत सिंपल वे में एग्जीक्यूट करना है। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द प्लेयर्स, definitely it will help to coaches, teachers or other trainers to understand the behavior of the players, how he can react after giving the loads, or how he can what will be his reaction after the training or after the resistance. So it is up to the coaches or trainers or guides कि how they are going to utilize the knowledge of sports psychology in their coaching, teaching and training field. Then strengthening the mind. When we have a proper knowledge or education of sports psychology, definitely हमारा जो mental एक presence है, हमारा जो एक mental condition है वो बहुत strong हो जाएगा। एंड इन दैट कंडीशन ऑटोमेटिकली हमारी जो माइंड है उसकी स्ट्रेंथिंग बढ़ जाएगी। फिर हमने ये पता है कि व्हेन आई एम गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल, हमारे जो ओपोनेंट है वो हमें बास्केट करेगा, हमको इससे डरने की बात नहीं है, हमें इससे अपने आप को डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, टू स्टॉप देम एंड देन कन्वर्ट द बास्केट्स। दोनों हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमने अपनी ड्यूटी करनी है, ना कि हम उसी कंडीशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज कर दें। तो हमारा अपना जो माइंड है उसकी इतनी स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए कि हम किसी और के एफर्ट से या किसी और की कंडीशन से खुद को डिस्टर्ब ना करने पाएँ, या हमारी जो मेंटल इक्विलिब्रियम हो डिस्टर्ब ना हो। देन डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट एंड गोल सेटिंग। टीम स्पिरिट की जब बात आती है, मैंने अभी इसके पहले आपसे बात की कि वी शुड नो द स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन ऑफ आवर टीममेट्स। हमने पता होना चाहिए कि एक जो नंबर 5 का प्लेयर है वो 5 नंबर पे आकर के बहुत तेज़ी से पिच हिटिंग कर सकता है, और हमें उसका मेंटल सेटअप पता होना चाहिए कि ये ऑड कंडीशंस में बहुत
एक्स्ट्रॉर्डनरी गेम खेल सकता है, या हमने ये पता होना चाहिए कि हमारा एक जो टॉप मोस्ट हमारा बैट्समैन है वो केवल ओपन में ही अच्छी रन कर सकता है, नीचे आकर रन नहीं कर सकता है। अगर हमने ये हर चीज़ पता है तो ऑटोमेटिकली जो एज अ कोच या एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन हम अपनी टीम का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकलवा सकते हैं। बट व्हेन वी नो अबाउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टीममेट्स, और ये हमें पता चलता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, जब हमें अच्छी नॉलेज होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कि किस तरह से हम अपनी जो कंडीशंस हैं उसको समझ रहे हैं और अपने प्लेयर की कंडीशन को समझ रहे हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो साइकोलॉजी है ये किस तरह से हमारे डिफरेंट एज लेवल पे चेंज होती है, किस तरह से हमारी लाइफ में आगे कैरी होती है हमारे साथ में, और जब हमारी लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो फेज चल रहे होते हैं उसमें किस तरह से साइकोलॉजी चेंज होती है और किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज साथ में ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएटेड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? जनरली ये जो दोनों टर्म्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही हमें सिमिलर लगते हैं, बिकॉज ग्रोथ मीन्स ऑल्सो टू राइज और कुछ आगे बढ़ना या बड़े होना, और डेवलपमेंट के भी कुछ सिमिलर मीनिंग होती है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट growth and development in biological term, growth means any type of growth or any type of increment which we can measure in a quantitative value, which we can measure in a unit. Growth means a physical growth which we can see by naked eyes means growth like our muscular growth, growth in height, growth in weight, growth in muscle size, this growth in upper or lower limbs or in body organs. This is called actually growth. And when we are talking about development is a continuous process, and basically it depends upon the mental level. जब हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली ग्रोथ इज एट फिजिकल लेवल, डेवलपमेंट इज एट मेंटल लेवल। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद में हमारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, उसकी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल द डेथ। ठीक है, हमने जो भी हमारी लाइफ में नई कंडीशंस आती और हम हर कंडीशन में एक नई चीज़ सीखते हैं। डेवलपमेंट हमारी लाइफ में हर वक्त चलता रहता है। मैं बाहर निकलते हैं, ठीक है, हमने देखा रोड पर कोई व्हीकल आ रही है, वी हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि हमें पता है पहले से कि हमें चोट लग जाएगी। आगे अगर कोई ऐसी व्हीकल आ रही है जो स्लो चल रही है, हमारा जो एक्सपीरियंस है कि बहुत स्लो है, हम इसको हाथ देकर के आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो हम उसको हाथ देकर के रोड क्रॉस भी कर लेते हैं। मीन्स जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अप टू आवर एक्सपीरियंसेस, एंड ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। लाइफ में जब लोग हमारे जो इसके पहले की जनरेशन्स थी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन इतना बहुत ऑफन नहीं था, बहुत जनरली नहीं मिलता था, इतना कॉमन नहीं था। अब ऐसे कंडीशन में जब मोबाइल फ़ोन सिंपल आए, हर किसी ने सीखा उसको, और अच्छे वाले आए, स्मार्टफोन्स आए, अभी हर कोई उसको चला रहा है। इवन जो अपने से एक जनरेशन पीछे के लोग हैं वो भी स्मार्टफोन को बहुत इजीली ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जो कंटिन्यूसली चलता रहता है और जो कभी रुकता नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो growth and development is clear now. Now we are going to discuss about the different stages of life and the psychological level and activities which we can suggest them, or by which their proper mental and physical development is possible. So now we are going to discuss about the different developmental stages of the life and different stages of life
like when we are talking about the growth that starts from the zygotic life. So the first stage of an individual's life is zygotic development. When we are talking about the zygotic development, that is basically procedure starts when a sperm or ova conceives and then start making zygote. Basically, during embryonic development, there are a lot of changes, like there are a lot of mitotic and meiotic divisions in the cell in the zygote, and after that, आफ्टर 2 वीक्स जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाता है, जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, और धीरे धीरे विद इन द 9 मंथ्स जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मदर नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद हर फिजिकल एंड mental fitness, like with the physical fitness he has to perform some easy on physical activities, but keeping the pregnancy condition in the mind, and only in the observation of expert. Then she needs a proper balanced diet and a routine checkup by expert. After the embryonic development, then we are talking about the infants, that is the age of 1 to 5 years. Basically from the birth till 5 years जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी जो बोन और बॉडी और कंडीशन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत क्विक डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं इनके अंदर. स्टार्टिंग 6 मंथ्स दैट जो बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है, वो उसका जो रिएक्शंस हैं वो कम होते हैं. जनरली बहुत ज़्यादा मिक्सअप होना या बहुत ज़्यादा उसके रिएक्शंस किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होते हैं. लाइट, साउंड या हेट, कोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है. बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, इवन 4 to 6 ईयर्स मंथ्स में वो इन सब चीज़ों पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है. विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, देन उसके जो कुछ और रिएक्शंस हैं, लाइक बेड पर टर्न हो जाना, या थोड़ा बहुत क्रॉलिंग करना स्टार्ट करना, या हाथ पैर का थोड़ा बहुत मूवमेंट्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर 1 ईयर और उसके जो अपने इमोशंस हैं, लाइक जो उसका पेन है या प्लेजर है, वो शो करना स्टार्ट कर देता है. और 2 ईयर्स तक फिर वो अपने जो भी उसकी फीलिंग्स है, लाइक इमोशंस जो जितने भी, चाहे वो एंगर हो, चाहे हेट हो, या अपना उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो दिखाना स्टार्ट कर देता है. बेसिकली इन दिस डेवलपमेंटल फेज दैट चाइल्ड नीड्स proper balanced diet, mother's feeding, especially first 6 months, and a very healthy and hygienic conditions, plus proper vaccination is needed for a better development of the child. And the child, it is very necessary to provide them a healthy environment, a sporty event for the sports, for the children, because they love to play, they love to play with toys or some recreational activities, or some free play games like kicking or throwing or receiving the balls. All these activities are useful for them. Even running, jogging, or sometimes for the small kids, cycling is also useful for their development. So that these are the important areas where the parents, or after 3 to 3.5 years, the teachers always keep all these topics in the mind कि वो उनको ऐसे atmosphere provide करें. One more thing, this is the age where child is not in habit of eating too much. तो हमने या जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं, उनको बहुत ध्यान देना होगा उस बच्चे की कैलोरीज के ऊपर, कि उनको उस बच्चे को प्रॉपर कैलोरीज मिल सकें. देन बात करते हैं चाइल्डहुड एज की, दैट इज़
6 to 12 ईयर्स या 6 to 11 ईयर्स का जो एज होता है, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, दोनों इसमें आ जाता है। बिकॉज फर्स्ट 3 ईयर्स 6 to 9 ईयर्स इज चाइल्डहुड एंड देन 9 to 12 ईयर्स इज लेटर चाइल्डहुड स्टेज। दोनों ही स्टेजेस में ऐसा है जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है बहुत ही रैपिड कंडीशन में हो रहा होता है। जो मेल और फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है, दोनों में क्लियर कट डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस क्योंकि जो मेल एंड फीमेल का यहाँ से बेसिकली समटाइम्स आफ्टर 10 ईयर्स बच्चों में जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स हैं और फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में बॉडी वेट बढ़ना, जो मसल्स की साइज़ है बढ़ना, साथ में बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये सारी कंडीशंस होती हैं। प्लस बच्चों में बहुत ही प्रॉपर उनके अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस एज दे नीड्स अ प्रॉपर एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। प्लस इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत वाइल्ड हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। वो हर एक चीज़ जिसको देखते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। लाइक एंड बेसिकली दीज एज कैटेगरीज टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस। उनको हर एक बारे में क्वेश्चन पूछना होता है। स्टार्स हैं तो क्यों हैं, चेयर है तो क्यों है, बाइक है तो क्यों है। उनको हर एक चीज़ के बारे में एक लॉजिकल आंसर चाहिए होता है और उनको हर चीज़ के बारे में जानने की उनकी अपनी एक उनकी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को समझने की, जानने की और देखने की। सो इन दिस एज दे नीड्स अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। This is the age when after 5 or 6 years the player or the student can start playing proper amateur games। उनको प्रॉपर जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो गेम से सिखाए जाने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में उनको प्रॉपर फिजिकल फिटनेस जो ट्रेनिंग है वो देना उनको स्टार्ट कर दी जाती है। साथ में उनकी जो एक मेंटेलिटी है वो चेक करके कि किस तरह के गेम्स में उनको इंटरेस्ट आ रहा है वो उसमें उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जाता है। इस एज में भी हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। समटाइम्स वैक्सीनेशंस ख़त्म हो जाते हैं बट फिर भी इन केस ऑफ एनी नीड वी नीड टू कंसर्न विद एक्सपर्ट्स और द डॉक्टर और द काउंसलर। प्लस इस एज के लिए जो बैलेंस डाइट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस एज के जो बच्चे होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उनको भूख लगी है ऐसा करके। वो जनरली खेलने में और अदर वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, इनकी जो न्यूट्रिटिव डिमांड है या नीड है उसे कंप्लीट करना चाहिए। देन बात करते हैं 13 to 19 ईयर्स की, दैट इज़ एडोलसेंस एज, और इसको हम लोग बोलते हैं टीन एज। टीन एज इज़ बेसिकली अ वेरी रिवोल्यूशनरी एज जहाँ पर जो मेल एंड फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं। मेल्स फीमेल्स की जो फिजिक में प्रॉपर डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो मेल है उनकी वॉइस भारी होना और हेयर्स का बॉडी पे आना, प्लस उनके अंदर स्पेरमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो कि उनके जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है। साथ में फीमेल्स में जो सेम उनकी वॉइस का सॉफ्ट होना, उनकी बॉडी पर हेयर्स का डेवलपमेंट एंड देन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, साथ में हिप मसल्स पर या उनके वेस्ट साइज पर ढेर सारी ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ का इकट्ठा होना। साथ में फीमेल्स में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 जनरली फीमेल्स में जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है। सो इन बोथ कंडीशंस मेल एंड फीमेल दे बोथ नीड्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा केयर। जनरली एक ऐसी एज है जब वो अपनी उनकी बॉडी में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को लगता है कि नाउ दे आर इनफ मैच्योर। वो कंडीशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसको जो सोसाइटी में देख रहे हैं। बस जनरली वो इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो दे नीड अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दे नीड अ प्रॉपर सप्लायर्स एनर्जी थ्योरी। जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो फॉर दैट
the sports is the best way where they can execute their where they can burn their calories, and they can execute their emotions also over there. Then this is age where जनरली चिल्ड्रंस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली एक प्रॉपर टॉपिक है कि एडोलसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट. एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली लेस एक्सपीरियंस एंड हाई डिज़ायर प्लस बहुत ज़्यादा रोशनरी एज होती है, बहुत ज़्यादा म्यूटनीशिप उनके अंदर आ जाती है कि वो जल्दी लोगों की ज़्यादा बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक उनको पसंद नहीं होता, उनको लगता है कि नाउ दे आर इनफ ग्रोन अप फॉर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस. सो इन दैट कंडीशन इट इज़ मस्ट टू अ प्रॉपर काउंसलिंग इज़ मस्ट, प्लस दे नीड अ बैलेंस्ड डाइट, अ हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन, प्लस उनका जो एक रिलेशनशिप है विद देयर टीचर्स, विद देयर पेरेंट्स, दैट शुड बी इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, so that they can discuss their problems and their feelings with their parents and the teachers. And this is the responsibility of teachers and parents, that they can provide them a proper support to guide them or to make them out from their consequences of the mind or the conflicts of the mind. Then when we're talking about the challenges of this the adolescence, there are a lot of changes like challenges of this age, like साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. जो इनके इमोशंस हैं थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. उनका जो एक जो कहते हैं कि इनके अंदर ढेर सारी डिज़ायर्स डेवलप हो जाती हैं. इनके अंदर जो इमोशनल कंडीशंस हैं जैसे लव, एंगर, थॉट, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं. साथ में एक जो अट्रैक्शन है टुवर्ड सेकेंड डिफरेंट जेंडर वो भी होना स्टार्ट हो जाता है. सो एक जो ये इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ पॉसिबल विद द काउंसलिंग. देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस. फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों ही के जो हार्मोन्स हैं, जो डिटरमिनेटिंग हार्मोन्स हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में और मेल्स में, दोनों में ही. तो ऐसी कंडीशन में समटाइम कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर हार्मोन्स का डेवलप ना होना या बाकी चीज़ों के चक्कर में कुछ ढेर सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं जो उनके फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इवन इन द मेल एंड फीमेल बोथ. सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द टीनेजर्स टू behave properly in this age and keeping a strong psychology, a positive psychology towards his own physique and his condition. And in case of any need they can discuss with the doctors on and other experts. After that then sexual development, we know मैंने भी डिस्कस किया इसके पहले कि जो मेल्स हैं उनमें स्पेरोमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके अंदर जो मेन डोमिनेटिंग हार्मोन है उसका सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है. फीमेल्स में ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उनमें ओवल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. तो दैट इज़ ऑल्सो a condition where they need a proper support and counseling about these things कि ये क्यों हो रहा है और इसका उनके बॉडी पर क्या इफेक्ट है. दे शुड नो अबाउट इट सो दैट उनका जो रिएक्शन है वो एक पॉजिटिव और एक वेलकमिंग रिएक्शन हो, ना कि एक नेगेटिव फैक्टर इसके तरफ जाए. देन बात करते हैं अ क्लैश बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन. सी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक 10 to 12 ईयर्स का एक जो 10 to 15 ईयर्स का स्टूडेंट है या जो एक यंग मेल चाइल्ड है, जब वो बाइक पर देखते हैं ना कि बाइक की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर्स पर आवर्स लिखी हुई है, तो जनरली ऑलवेज हमेशा उनके माइंड में एक बात आती होगी कि अगर 120 किलोमीटर्स लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम चला सकते हैं एंड दे हैव पावर. उनको लगता है कि फिजिकली दे आर इनफ स्ट्रॉन्ग टू ड्राइव टू राइड अ बाइक अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर एंड वो ट्राई भी करते हैं समटाइम्स. जब वो उसको लेके एक बार बाइक गिरते हैं ना, फिर उनका जो एक्चुअल कंडीशन आती है, उनका जो एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है उससे फिर उनको समझ में आता है कि नो वी कैन नॉट राइड अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर. हमने 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर ही राइड करनी है. दिस इज अ एक्चुअल कंडीशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डिज़ायर, जो दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है.
ये एक छोटा सा एग्जांपल था. देयर आर a lot of changes और a lot of difficulties between condition, reality and expectation, and there they need a lot of support and counseling. After then, academic pressure and their struggle in life. Definitely this is the time, this is the golden time for making their career and getting education in schools or then going to universities or in professional organizations. बहुत प्रेशर होता है एडोलसेंट्स पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं. सो दे नीड अ प्रॉपर केयर, प्रॉपर काउंसलिंग एंड सपोर्ट वेयर दे कैन कीप देयर माइंड इन अ पॉजिटिव स्टेट एंड दे कैन फाइट विद द कंडीशन. देन बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलसेंट्स. बेसिकली कैसे मैनेज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को. इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़. By physical activities they can get a proper physical, maintain social and psychological condition by which they can fight with any condition. Then sex education, क्योंकि इनमें ये सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो मिसगाइड होते हैं और ढेर सारे उल्टे सीधे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. तो इससे बेटर है कि उनका हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करके उनको अच्छे, गलत और सही में एक रास्ता दिखाएं. देन एनकरेजिंग हॉबीज़ में अगर एक पॉजिटिव हॉबी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में है तो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही क्रिएटिव होगा. तो ऐसे कंडीशन में हर जो एडोलसेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव हॉबी होनी चाहिए. देन इंस्ट्रक्शन इन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़. डेफिनेटली क्योंकि ये जो एडोलसेंट्स हैं बहुत इनकी एक्सपीरियंस कम होती लाइफ में. ये दुनिया में फर्स्ट टाइम निकल रहे होते हैं बाहर घर से अपने बिना पेरेंट्स और टीचर्स के गाइडेंस में. तो इनकी अपनी जो एथिक्स हैं, अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वही इनके मेन गाइड होते हैं, वही इनके मेन सपोर्टर होते हैं इन ऑड एंड इवन कंडीशंस. तो a proper practice of ethical values and moral values, that is must for these adolescents. Then एक last जो topic है, that is educating parents and teachers. See, with the dealing with the adolescents, it is must for teachers and parents also that we cannot insist them for any behavior, we cannot insist them for anything. हमने उनकी काउंसलिंग करनी है, हमने उनको एक प्रॉपर जो सही और गलत है उसके बीच का रास्ता दिखाना है. एंड देन ओनली दे कैन चेंज देयर बिहेवियर. वी कैन नॉट से दैट डू दिस विदाउट एनी लॉजिक. दे नीड अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस. दे हैव अ मैच्योर माइंड ओवर हियर वेयर दे कैन थिंक what is right or what is wrong. So they need a proper support. For that, teachers and parents also will be well equipped to deal with these type of the conditions. This chapter is over now. It's a very small chapter and a very interesting chapter because जब हम किसी की बिहेवियर की बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो और जब हम किसी के माइंड की बात करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मेरा वाइल माई PhD अभी मैंने टॉपिक भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रिलेशन ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी ले रखा है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो होप everyone will get benefited from this video. And once again, please watch full video, share and subscribe with other people. Thank you so much.